شبیر نے رحیم یار خان میں ایک ایسے داماد کو دیکھا ہے جو اپنی سسرال سے خوش نہیں تھا۔ سسرال والے اس کے نکمے پن اور لاپرواہی کا تانا دیتے۔ شبیر نے ایک دن دیکھا کہ پروین ایک گھر میں کام کر رہی تھی اور اس کی مالکن آس پاس ہی موجود تھی۔ پروین، پوچھا ذرا اچھی طرح لگانا، فرش پر مٹی رہ جاتی ہے۔ جی باجی وہی کر رہی ہوں۔ اور سن، کل تو کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ باجی کام پہ آنے کے لیے میں گھر سے نکلی تھی، مگر کرایہ نہیں تھا۔ تیرے بنا روز روز کے بہانے، 3-4 گھروں میں کام کرتی ہے، تیرا میاں پیسے ویسے نہیں دیتا کیا؟ یہی تو رونا ہے باجی۔ کیا کہتا ہے؟ کیا کہے گا؟ ہر دفعہ اس کو بولا ہے کہ کوئی ٹھیلا لگا لے، کوئی کام کر لے، مگر کہتا ہے میں ایسے کام نہیں کر سکتا۔ پڑھا لکھا ہے کیا؟ اس کے خاندان میں کسی نے الف بے کا قاعدہ نہیں دیکھا، تو وہ کیا پڑھے گا؟ تو سارا بوجھ تجھ پر ہے کیا؟ جی باجی، بچوں کے منہ سے کام کر رہی ہوں، ورنہ کب کوئی ساتھی کو چھوڑ دیتی۔ اچھا تو رو مت، یہ لے کچھ پیسے رکھ لے، تیرے کام آئیں گے، 2-4 روز کا کرایہ نکل جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اور ہاں، آج کپڑے تو ہیں نہیں، میرے روم کی اچھی سی ڈسٹنگ کرنا۔ جی۔ شبیر نے دیکھا کہ پروین نے جلدی جلدی سارا کام سمیٹا، ایک تھیلے میں کوڑا کرکٹ جمع کیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ کوڑے دان میں کوڑا پھینکنے کے بعد اسے چنچی رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کے قریب اترتے اور گلیوں سے گزر کر گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا، جہاں اس کا شوہر آرام سے چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھک گئی میں آج تو بہت ہی کام کیا ہے۔ باپ آیا تھا تیرا؟ ابا کیوں؟ اسے لگتا ہے کہ میں تجھ پہ ظلم کرتا ہوں، تجھے فاقے میں رکھتا ہوں، لے جانے آیا تھا تجھے۔ اچھا اچھا کیا جائے گی تو؟ سوچ رہی ہوں 2-4 دن کے لیے چلی ہی جاؤں۔ اور کام کا کیا ہوگا؟ کام کیا میری ذمہ داری ہے؟ 2 بچوں کے باپ ہو، کمانا تم کو چاہیے، تم کماؤ۔ یہ جو تیری زبان سے زہر نکل رہا ہے نا، سب سمجھتا ہوں میں۔ ہر وقت اپنے باپ کی زبان مت بولا کر۔ ہاں میرے باپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی نا، کہ اس نے تم کو اپنی بیٹی دے دی۔ ہاں تو اتنی فکر ہے تو دے دینا روکڑا، جو اتنا مال جمع کر کے رکھا ہے، قبر میں لے کے جائے گا کیا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر میرے باپ نے بگاڑا کیا ہے تمہارا؟ اگر میرا باپ اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند ہے تو اس میں قصور کیا ہے اس کا؟ ہاں تو چلی جا طلاق لے کے۔ کیا کہا؟ بولو دوبارہ۔ کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں عورت ہے کہ ڈائن ہے، اللہ ایسی سسرال ایسی بیوی کسی کو بھی نہ دے، آزاد کر کے رکھ دیے زندگی۔ پروین کا شوہر غصے میں تھا، وہ گھر سے باہر نکل گیا اور پروین ایک طرف کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ پروین اور اس کے شوہر کے درمیان لڑائی جھگڑا تو روز کا معمول تھا ہی، لیکن اب پروین کا شوہر اپنے سسرال کے کچھ زیادہ ہی خلاف ہو گیا تھا اور اپنی بیوی کو ماں کے گھر جانے سے روکنے لگا تھا۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ پروین اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ تھامے اپنے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ شوہر سے سامنا ہو گیا۔ یہ تو صبح ہی صبح ہے، تو سمجھا کہ تو کام پہ چلی گئی ہو۔ یہ ناشتے کا سامان لائے، ناشتہ بنا جا کے۔ رکھ دو اسے، میرے ابا کی بہت طبیعت خراب ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ پروین تو وہاں نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ آخر میرے ابا نے ایسا کیا جرم کیا ہے جو میں انہیں چھوڑ دوں؟ بولو، ان کی بہت طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دو۔ جرم؟ زندگی کا سکون چھین لیا تیرے ابا نے، اور تو پوچھتی ہے کہ کیا جرم کیا ہے؟ تو وہاں نہیں جائے گی، میں تجھے اس جنجال پورا میں جانے نہیں دوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں جاؤں گی، روک سکتے ہو تو روک لو، چلو۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر تو جا، بچے نہیں جائیں گے۔ چلو ادھر چلو، چل تو جا، تجھے جانا ہے نا اپنے باپ کے گھر، چل جا، چل لیاقت، چل۔
चल अंदर। बाप के डांटने पर बच्चे मां से हाथ छुड़ाकर एक तरफ को चले गए, जिसके बाद परवीन के शौहर ने अपनी बीवी को दरवाजे से बाहर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया। लियाकत और उसकी बीवी के दरमियान दूरियां हायल होती जा रही थी। लियाकत की बीवी परवीन अक्सर लड़ झगड़ कर अपनी मां के घर जाने लगी थी, जिस पर परवीन का शौहर अपने ससुरालियों का दुश्मन बन गया था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि लियाकत अपने ससुराल के दरवाजे पे था। ससुर ने दरवाजा खोला तो उसके माथे पर बल आ गए। क्यों आते हो? परवीन को लेना? हाँ, उसे कहे कि शराफत से घर चले। हरगिज नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और मैं परवीन को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। ठीक है, तो फिर मैं पुलिस लेके आता हूँ। कर लो जो करना है, लेकिन परवीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और सुनो, आइंदा ये दरवाजा मत खटखटाना। अब जाओ तुम यहाँ से। देख लूंगा तुझे बुड्ढे। लियाकत का ससुर अंदर गया तो परवीन इस तरह खड़ी थी जैसे उसने दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन लिया हो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखे। उसे कहे कि शराफत से घर चले। हरगिज नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और मैं परवीन को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। ठीक है, तो फिर मैं पुलिस लेके आता हूँ। कर लो जो करना है, लेकिन परवीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और सुनो, आइंदा ये दरवाजा मत खटखटाना। अब जाओ तुम यहाँ से। देख लूंगा तुझे बुड्ढे। लियाकत का ससुर अंदर गया तो परवीन इस तरह खड़ी थी जैसे उसने दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन लिया हो। बेटा, मैंने उसे भगा तो दिया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने गलती की है। कभी मुझे मिलेगा तो मैं उससे माफी मांगूंगा। नहीं नहीं अब्बा, आपने कुछ गलत नहीं किया। अब मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। अब ये आएगा तो मैं खुद इससे बात करूँ। ठीक है बस, आ जाओ। काफी लड़ाई झगड़े के बाद परवीन और लियाकत के दरमियान सुलह हो गई थी और परवीन अपने शौहर के घर चली गई थी। सुलह आर्जी साबित हुई क्योंकि अब उसका शौहर मार पीट पर भी उतर आया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि परवीन की कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके दोनों मासूम बच्चे माँ की पट्टी को देखकर अपनी माँ को प्यार कर रहे थे। परवीन के शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके अपनी बीवी का हाथ तोड़ दिया था। ताज़ा लड़ाई कुछ इस तरह शुरू हुई थी। वो परवीन, बात सुन, कुछ पैसे हैं तेरे पास? हाँ, 200-300 रुपए उधार लेकर आई थी बाजी से। बच्चों के दूध के लिए वही रखे हैं। बच्चे बच्चे बच्चे, किसी दिन इन बच्चों को नाले में फेंक दूंगा उठा के। अबे कभी अपने शोहर की भी फिक्र कर लिया कर। शौहर की फिक्र कर लूं? क्यों कर लूं फिक्र? और तू होता कौन है मेरे बच्चों को नाले में फेंकने वाला? तेरा दिमाग तो सही है ना, या कहीं नशा करने लग गया है तू? हाँ, तेरे बाप ने भड़का के भेजा होगा तुझे मेरे खिलाफ कि मैं नशा करने लगा। हाँ, करता हूँ नशा। फिर खुदा के लिए मेरी जान छोड़ और वहाँ शीशे पे रखे हैं पैसे। जा ले जाओ उसे, सुला दूंगी बच्चों को भूखा। चलो उतरो, चलो अंदर। परवीन के शौहर ने बीवी की बताई हुई जगह से पैसे निकाले और घर से बाहर चला गया। एक दिन शदीद लड़ाई और मारपीट के बाद जब लियाकत की बीवी परवीन अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकली तो शौहर ने बच्चों को लेकर जाने से मना कर दिया। चलो चलो भाई, उठो, चल के चप्पल पहनो, आ जाओ। तुम जाओ जहाँ दिल चाहे, मगर मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? इसको ले जाओ, इसको, मगर मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, रखना है तो रख लो इसको। मैं अदालत से अपना बेटा ले लूंगी। चल गुड़िया। अम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चुप कर, वरना लगाऊंगा एक थप्पड़। जाओ दफाओ यहाँ से। बैठ इधर। उस रोज लियाकत की बीवी अपनी बेटी को लेकर बाप के घर चली गई थी। लियाकत ने बहुत कोशिश की कि बीवी वापस आ जाए, लेकिन उसे मायूसी हुई और वो अपने ससुर का पक्का दुश्मन बन गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि लियाकत किसी गहरी सोच में था। उसने अपने ख्यालों में देखा कि उसका ससुर उसके बेटे के कत्ल के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे था और लियाकत सलाखें पकड़कर चीख चीख कर कह रहा था कि यही मेरे बेटे का कातिल है। इसी दौरान लियाकत अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। वो बुरी तरह पसीने में नहा चुका था।
शबीर को मालूम हुआ है कि लियाकत ने मुबैना तौर पर अपने ससुर को अपने घर की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हुए उसको कत्ल के एक मुकदमे में फंसवाने की कोशिश की थी। शब्बीर ने देखा कि लियाकत पुलिस स्टेशन में अपने ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहा था। लियाकत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके ससुर ने उसके कमसिन बेटे को कत्ल किया था। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि लियाकत के कमसिन बेटे को खुद लियाकत यानी सगे बाप ने कत्ल किया था। ससुर को फंसवाने के लिए इल्जाम उसके सर पर डाल दिया था। हकायक सामने आने के बाद पुलिस ने संगदिल बाप को गिरफ्तार कर लिया। 2005 में इनकी शादी ज़ाहिर पीर से ताल्लुक था इनका ससुर अक्सर आता था और अपनी बेटी को लेके चला जाता था। तो ये तनाज़ा इनका कल शाम भी हुआ। ये अपनी बेगम को बेटी को लेके ससुर इसका चला गया ज़ाहिर पीर। तो पीछे इस जो लियाकत हुसैन है जो इसका वालिद है, बच्चे का नाम है शाबान। इसको वो कहता है कि मैंने तंग आके और अपने ससुर और अपनी बेगम से बदला लेने के लिए मैंने इसको जो था कत्ल किया। ये इंतहाई लर्ज़ाखेज़ किस्म की वारदात है और बड़ी दिल दहला देने वाली वाक़या है। ये जो बच्चे का वालिद है इसने अपने ससुराल वालों से नाचाकी की बिना पर क्योंकि इसके ससुराल वाले इसकी बीवी को और बड़ी बेटी को कल वो नाराज होकर घर अपने वापस ज़ाहिर पे ले गए। तो उनको फंसाने के लिए इसने अपने बच्चे को खुद मार के वहाँ पे हैंग किया। ये है वो वहशी बाप जिसने अपने मासूम बेटे की जान ली। हर दो महीने हम मेरे घर वाले खसी दे वेंदे पिया, कुट्टी मारी ते खसी पे जरा मैं कमा गिंदा ओ खसी दे वेंदे पिया। मैं जरा घेन में दे वाला 2 महीने के बाद वाला मैं खर्चा होंदा घेन गिंदे 10,000 20,000 15,000। मैं गरीब आदमी, मैं बहुत परेशान हाँ। मेरे रिश्तेदार सब जानते हैं, हर बंदा जान दे जब बताई है। मैं तकलीफ आ तो कल हूँ मेरी घर वाली घेन ते गए जबरदस्ती घेन ते गए, मेरा पुत जा मेरे हवाले की गए। मैं बहुत परेशान थी, तेरा मैं तकलीफ नहीं थी, मैं बच्चे को मार के मैं जुर्म कबूल की थी। और ये है उस मासूम बच्चे की माँ। मेरे बेटे के कातिल मुझे मेरा शौहर ही लगता है क्योंकि उस वक्त वो ही था उसके साथ। मैं तो अपने वालिदैन के साथ चली गई थी। सुबह यानी कि यही खबर मिली है कि आपका बच्चा जो है ना अल्लाह को प्यारा है। एक तरफ बेटा एक तरफ शौहर, मैं तो दोनों तरफ से मतलब है कि रोई जा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। शब्बीर ने सगे बाप के हाथों कमसिन मासूम बेटे के कत्ल की मजम्मत की है और कातिल को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मोहम्मद कदीर और उसके बच्चे घर में हिफाजती मास्क लगाकर घूम रहे थे। कदीर बहुत से स्कूल बैग्स के ढेर पर सर रखे किसी गहरी सोच में था कि इतनी देर में उसकी बीवी वहां आ गई। क्या बात है कदीर, इतना परेशान क्यों हो तुम? अरे भाई परेशान क्यों ना हो, तुम्हें तो पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और कारोबार तो बिल्कुल ही बंद होके रह गया। कदीर अल्लाह पाक राज़िक है, इंशाल्लाह ताला वो कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर देगा। ये देखो, मुझे तो इन बैगों की फिक्र हो रही है। बाहर स्कूल भी बंद पड़े, ये बैग कौन खरीदेगा आखिर? अच्छा, मैं जरा बाहर का चक्कर लगा के आता हूँ, शायद रोजी रोटी खुल जाए। अरे लेकिन जाओगे कैसे? हमारे मोहल्ले में एक पूरी फैमिली ना कोरोना में मुब्तला हो गई है। तुमको पता तो है सारी गलियों के रास्ते बंद हैं। अरे बस रहने दो, मैं तो कह रहा हूँ ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है, जब आनी होगी ना तो आ जाएगी। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये जो पूरी दुनिया में कोरोना छाया हुआ है ये क्या है? अच्छा खैर, मैं खाना लगाती हूँ, बच्चे भी कब से भूखे बैठे हुए। खाना? अरे ये तो तुमने खुशी की खबर सुना दी। क्या राशन वाशन है क्या घर में? हाँ, थोड़ा सा बचा हुआ था राशन, वो मैंने पका लिया था। अब बस इतना है कि शाम में हो जाएगा, बाकी का अल्लाह मालिक है। हाँ सही कह रही हो तुम, ईद भी तो सर पे है। अरे ईद का क्या है, ईद तो हर साल आती है।
इस साल नहीं तो अगले साल धूमधाम से ईद मनाएंगे। यार मुझसे ना बच्चों की खामोशी नहीं देखी जाती। इतने मासूम है मेरे बच्चे कि किसी चीज की फरमाइश भी नहीं करते मुझसे। इतना परेशान ना हो, बस दुआ किया करो कि अल्लाह पाक हम सबको इस कोरोना की वबा से दूर रखे। तो मैंने सुना है कि बस जरा से खांसी नजला होता है और इंसान की सांस घुटना शुरू हो जाती है। पता नहीं, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझसे देखी नहीं गई। एक मासूम बच्ची, उसका सांस उखड़ रहा था और माँ बाप उसके करीब खड़े थे और उसे छू नहीं पा रहे थे। मुझे तो डर लगता है कहीं खुदा न करे हमारे बच्चों को अगर हो गया तो हमारे पास तो अस्पताल जाने के भी पैसे नहीं है। कफन तफन तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह पाक सब खैर करे। कुछ नहीं, बस एहतियात करनी है। बेटा तुमने साबुन से हाथ धोए थे? अम्मा साबुन तो था नहीं, मैंने पानी से ही हाथ धो लिए। बेटा तू बिल्कुल फिक्र नहीं कर, मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। कबीर इतना परेशान ना हो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो और उसके हाथ में धो। मैं खाना लगाती हूँ, बच्चे भी भूखे बैठे हैं कब से। दरियाम गांव जफरवाल का 50 साला कदीर 3 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। स्कूल बैग्स बनाकर 50 रुपए में फरोख्त किया करता था, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से वो बिल्कुल ही बेरोजगार हो गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कदीर टीवी देख रहा था। बीवी आई तो उसने टीवी की आवाज बंद कर दी। अरे तुमने कुछ सुना? क्या? हुकूमत ने बेरोजगारी के लिए फंड जारी कर दिया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ अच्छी खबर तो है। अब देखो हमारा नंबर कब आता है। आ जाएगा नंबर। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखा करो, वो जो भी करता है ना बेहतर करता है। हाँ सही कह रही हो। उस दवा के चक्कर में रिश्तेदारों के भी फोन आना बंद हो गए, और तो और यार दोस्तों ने भी कटना शुरू कर दिया है कि कहीं उनसे कुछ मांग ना लूं। ऐसी बातें नहीं सोचा करते। अरे वबा की वजह से सभी परेशान हैं। पता नहीं किस बेचारे की क्या मजबूरी हो। अच्छा वो बच्चों ने ईद के कपड़ों का जिक्र तो नहीं किया? हाँ छोटी बोल रही थी, जिद कर रही थी कपड़ों के लिए, लेकिन आप मत परेशान हो, मैंने समझा दिया इसको। कैसा बदनसीब बाप हूं मैं कि बच्चों के ईद के कपड़े भी नहीं बना सका। अरे ईद का क्या है, एक दिन की बात होती है, चला भी जाता है पता भी नहीं चलता है। अरे ये ईद का एक ही दिन तो होता है जो बच्चे अपने जहन पे बिठा के बैठ जाते हैं। अच्छा खैर, पिछले साल के कुछ कपड़े रखे हुए, मैं उन्हें ठीक ठाक करके पहना दूंगी, टेंशन ना लिया करो ज्यादा। वाकई तुम एक समझदार औरत हो। अच्छा मैं बाहर देखता हूँ, शायद कोई दुकान खुली हो ताकि हमारी भी रोजी। एक मिनट रुकिए, यही तो पड़ा हुआ था, ये ले, ये मास्क लगा के जाएं और ख्याल रखिए कि ये भीड़ में मत जाइएगा आप, समझे आप? अरे ये कोरोना की जो वबा है ना, एक दूसरे को हाथ लगाने से ही दूसरे में मुंतकिल हो जाती है, और जहाँ करके एक फर्द को हो गई ना तो पूरी की पूरी फैमिली मुतासिर हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बाबा सुन लिया मैंने, बस दुआ करना अल्लाह ताला को रास्ते खोल दे। चलता हूँ। मास्क तो लगा लो। हाँ हाँ लगा रहा हूँ भाई। कदीर घर से बाहर निकला तो मार्केट में रश था। कुछ लोग मास्क लगाए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अक्सर जगह पर बगैर किसी हिफाजती इकदाम के सरगर्मियां जारी थीं। कदीर भी एक दुकान पर खड़ा हो गया। जब जरा रश कम हुआ तो कदीर ने दुकानदार से बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बड़े साहब मैं ये बच्चों के बैग बनाता हूँ, ज़्यादा महंगे नहीं है, सिर्फ 50 रुपए के। अगर आप ये रख लेंगे तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी। देखो बड़े भाई, ऐसा है कि आपको मालूम है कि स्कूल तो बंद है। जब स्कूल बंद है तो बच्चे बैग लेके क्या करेंगे? हाँ वो तो आप ठीक कर रहे हैं, फिर भी अगर आप
चाहे तो रख लें, एक दो दर्जन ही रख लें और मुझे कुछ पैसे दे दे, और बाकी जब बिक जाए तो फिर मुझे दे दीजिएगा। हाँ, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई आपको? आप ऐसा करें कि कुछ माल हमारे पास रखवा दें, 400-500 रुपए जो ना मैं आपको एडवांस दे दूंगा, इससे ज्यादा की पोजीशन नहीं। और हाँ, बाकी माल बिकेगा तो मैं आपको दे दूंगा। चले, बड़ी मेहरबानी आपकी। बस मैं भी अभी गया और अभी मैं बैग लेके आया। ठीक। शब्बीर ने देखा कि कदीर तेजी से दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ और बहुत से बैग जमा करके निकलने लगा। शब्बीर ने देखा कि कदीर हाँफता कांपता दुकानदार के सामने खड़ा था। भाई साहब, ये मैं बैग ले आया हूँ। दुकानदार ने उसे 500 रुपए निकाल कर दिए, जिसका कदीर ने थोड़ा बहुत सामान खरीद लिया। बड़ी मेहरबानी बड़े साहब, मुझे कुछ सौदा दे दें। 2 किलो आटा दे दें, आधा किलो चीनी और एक चाय की पत्ती और एक छोटा पैकेट घी का। चलो ये मैं दे देता हूँ आपको। ईद पर बच्चों के लिए कुछ ना करने की वजह से शदीद जहनी दबाव में था। कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था। घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी कि ऐसे में बकरीद भी सर पर पहुंच गई, जिसने कदीर को जहनी तौर पर तकरीबन मफलूज कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कदीर की बीवी और उसके बच्चे सो रहे थे। कदीर खामोशी से उठा और एक पुरानी कोट की जेबों में कुछ तलाश करने लगा। फिर उसने एक पुड़िया निकाली और आटे में मिला दी। फिर शब्बीर ने देखा कि कदीर ने आटा गूंधा और यूं ही वो रोटी पकाने लगा, उसकी बीवी की आंख खुल गई। अरे कदीर, ये क्या कर रहे हो आप? रोटियां? हाँ, मैंने कहा तुम लोग सो रहे हो, बच्चे उठेंगे, रोटी मांगेंगे, मैं रोटी बना। हटो, मैं खुद बना लूंगी। जाओ बैठो तुम अंदर। ना फैला दिया सारा किचन मेरा। शब्बीर ने देखा कि कदीर की बीवी रोटियां पका रही थी और कदीर अपने सोए हुए बच्चों को बारी बारी याद कर रहा था। उस रोज मुबैना तौर पर कदीर ने गुर्बत, बेरोजगारी और फाका कच्छी से तंग आकर खाने में जहर मिला दिया था। जहर ने कदीर को फौरन ही मौत की नींद सुला दिया था, जबकि उसकी बीवी और बच्चे अस्पताल पहुंच गए थे, जहां वो जेर इलाज थे। शब्बीर को मालूम हुआ है कि कदीर के बीवी बच्चे इलाज मुआवजे के बाद खतरे से बाहर हैं। वजीर आला पंजाब ने इमदादी चेक भिजवाया था, लेकिन मुबैना तौर पर चेक लाने वाले ये कहकर उसे वापस ले गए कि जब कदीर के बीवी बच्चे अस्पताल से फारिग हो जाएंगे तो उन्हें चेक मिल जाएगा। शब्बीर ने इस हुकूमती वादे पर वल्लाह आलम कहा है। खुदा करे कि फाका कशी से मरने वाले कदीर के बच्चों का ख्याल रखा जाए, मुल्क में मौजूद लाखों बेरोजगारों और फाका कशों की इतनी मदद की जाए कि वो खुदकुशी न कर सकें और उनके बच्चे अपने वालिदैन के साए में पलते रहें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जो अपनी भाभी से खुश नहीं था, घर में आए रोज की चुपकलिश की वजह से घर का माहौल बर्बाद हो रहा था। आजम काम से घर लौटा तो आंगन में उसका 3 साला भतीजा एहसन चाचा चाचा कहकर उससे लिपट गया। चाचू टॉफी चाहिए। टॉफी चाहिए? वो तो मैं भूल गया। अभी चाहिए। अभी चाहिए? चले कोई साथ चलेंगे, चलोगे मेरे साथ? आ जाओ। अरे बेटा, चाचू को तंग मत करो, अभी काम से आए थके हुए। नहीं भाभी, 5 मिनट में बस लेके आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। बच्चे ने कल से बोला हुआ था, मैं भूल गया। चलो ठीक। आजम अपने भतीजे को लेकर बाहर चला गया और बच्चे की चाची भी आंगन में आ गई।
अरे भाभी आसम आए थे क्या? हाँ वो आए थे, छोटे को लेकर गए हैं चीज दिलाने। अच्छा, वैसे मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह तुम्हें भी जल्दी औलाद दे दे। आमीन भाभी। एक बात करूं, अगर बुरा नहीं मानो तो? इसलिए डॉक्टर है मेरे जानने वाली, तुम्हें साथ चलना, कल मैं चेकअप करवा के लाती हूँ। अरे भाभी मैं क्यों जाऊँ, मुझ में कोई कमी थोड़ी ना है। अगर आपको ले जाना है तो अपने देवर को ले जाइएगा। हाँ भाई, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आजम की शादी को 3 बरस हो चुके थे, लेकिन वो बे औलाद था। आजम को लगता था कि बे औलाद होने की वजह से भाभी उस पर तंज करती है, इसीलिए वो भाभी से ज्यादा खुश नहीं था। तुम ठीक कहती है, मुझे भी यही लगता है। उठते बैठते तंज करना। उस दिन एहसन को बाहर लेकर जा रही थी और मुझे देखकर पता क्या कहती हैं कि बे औलाद माँ के सामने अपने बच्चों को लेकर नहीं आना चाहिए। दिल तो चाह रहा था मुंह नोचूं उसका, लेकिन फिर भी मैं खामोश हो गई, बात टाल दी मैंने। मैं समझता हूँ यार, मैं लेकिन खाली अपने बड़े भाई का मुंह देखता हूँ। भाभी से तो सलाम दुआ करना भी गवारा नहीं करता। इसी दौरान आजम की भाभी ट्रे लिए अंदर कमरे में आ गई। अरे तुम लोग ये छुपके क्यों बैठे हो? मैं तुम लोगों के लिए हलवा बना के लाई हूँ। हम यही हैं, हमसे क्या जाना है भाभी? भाभी ये किस खुशी में? अरे वो न्याज दिलाई थी ना तुम दोनों की औलाद के लिए। भाभी क्या हर वक्त आप औलाद औलाद का ताना देती रहती हैं? हाय अल्लाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, किसी के लिए कुछ अच्छा करो आगे से वही दुश्मन हो जाता है। बात सुनो लड़की, यही लक्षण रहे ना तो तुम दोनों की औलाद नहीं होगी, बे औलाद ही रहोगी सारी जिंदगी। अल्लाह भाभी कितने बुरे बुरे अल्फाज निकाल रही हैं आप मुझसे। बे औलादी के ताने देवर के दिल में जख्म बन गए थे और वो शदीद गुस्से की आग में झुलस रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आजम की भाभी अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। क्या फैसला किया तुमने? क्या फैसला करूं, अपने भाई को निकाल दूं या तुम्हारी देवरानी को निकाल दूं, वो भी इसलिए कि तुम्हारी बदतमीजी का जवाब देते हैं वो। अच्छा मैं बदतमीजी करती हूँ? क्या बदतमीजी की है मैंने? और कौन करता है, मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे तरीके से। हर टाइम उनको बेऔलादी के ताने देती रहती हो तुम। लो भाई ये होता है, मैं तो उन्हें मशवरा देती डॉक्टर को चेकअप करवा लो, भी मेरा ही कसूर है। तुम किस जालत में पली बड़ी हुई हो, आज ये बता दो मुझे तुम। ठीक है मैं जाहिल हूँ ना, मुझे छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। मुझे नहीं मालूम, तुम उन्हें कह दो कि वो यहाँ से चले जाए, या वो रहेंगे इस घर में या मैं, नहीं तो मुझे अलग घर लेके दो। दूर हो जाए मेरी नजरों से, मेरा दिमाग खराब मत कर। आजम का 3 साला भतीजा आंगन में आजम के साथ खेल रहा था कि आजम की भाभी ने ये मंजर देख लिया। एहसन क्या कर रहे हो ये? इधर आओ। मैं चाचा के साथ खेल रहा हूँ। मैंने कहा इधर आओ, समझ में नहीं आ रहा? नहीं, चाचा के साथ खेल रहा हूँ। बच्चे का इनकार सुनकर माँ बच्चे के नजदीक आई और उसका कान पकड़कर जबरदस्ती उसे ले जाने लगी। बच्चा जिद करने लगा तो माँ ने उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए। चलो। भाभी का ये रवैया देखकर देवर उदास हो गया था, फिर उसके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी। एक दिन आजम मोटरसाइकिल लेकर गली में घुसा तो घर के करीब ही उसका भतीजा खेल रहा था। ओए एहसन, ये क्या मट्टी में घेरा है, सारे कपड़े गंदे कर लिए? चाचू मैं मोटरसाइकिल पर बैठूंगा। मोटरसाइकिल है, बैठना है, आजा। आजम ने भतीजे को मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसे सैर कराने ले गया। जा, हाँ तू बहुत शेर है। हाँ उस रात जब एहसन का चाचा घर लौटा तो उसका भाई और भाभी सदमे की हालत में, एहसन की चाची भी परेशान थी। आजम जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसकी बीवी ने परेशानी से सवालात की बौछार कर दी। क्या हुआ? आजम एहसन कहाँ पर है? आपके साथ था ना? हाँ मेरे साथ गया था, लेकिन मैंने उसे चीज दिलाकर भेज दिया था। मेरा बच्चा तुम्हारे साथ गया था? भाभी मेरे साथ गया था, इधर ही कहीं होगा, ढूंढ लेते हैं, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरा बच्चा। आजम तुम्हारे साथ गया था ना मेरा बच्चा, कहाँ छोड़ कर आए उसे? कहाँ है मेरा बच्चा? भाई मेरे साथ गया था, मैंने उसको गली में छोड़ा, जब वो गली में दाखिल हुआ मैं निकल गया था। यहीं कहीं होगा, परेशान होने की क्या जरूरत है? आए साथ चल के देखते, ढूंढ लेते, मिल जाएगा। आ जाओ आप। मेरा बच्चा। अभी कहीं नहीं जाता, ऐसा ना हौसला रखिए, अभी आ जाएगा, आ जाएगा अभी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो एक हौलनाक कहानी सामने आ गई थी। भाभी को सबक सिखाने के लिए उसके देवर ने उसके बच्चे का गला दबाकर उसे नहर में फेंक दिया था। 3 दिन के बाद बच्चे की लाश बरामद की गई थी।
ये है तफ्तीश के वो मनाजिर जब 3 साल बच्चे का चाचा अपने जुर्म का एतराफ कर रहा था। मोटरसाइकिल किधर गया? नहर वाले पासे। नहर वाले पासे फिर ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰ। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। पुलिस अपने रवायती और तकनीकी ज़रायों से तफ्तीश को अमल में लाना शुरू कर दिया। इसी तफ्तीश पे चलते हुए मुख्तलिफ शवाहिद जो है हमारे सामने आए कि इसके वालिद के छोटे भाई मोहम्मद आजम के साथ इस बच्चे को आखिरी बार एक मोटरसाइकिल पे देखा गया। जब इस बच्चे के चचा को शामिल तफ्तीश किया गया तो उसने ये बात आश्कार की कि उसने इस बच्चे को LBDC नहर में फेंक दिया। उसकी बात को वेरीफाई करने के लिए फौरी तौर पर गोताखोरों और 1122 की मदद लेके इस बच्चे की डेड बॉडी को तलाश करने की जो है वो कोशिश कर दी गई। बच्चे की जो डेड बॉडी है हमारी चीचा वतन की हदूद से इसी नहर में से बरामद हुई। ये है मुलजिम का बड़ा भाई जिसका कमसिन बच्चा मुबैना तौर पर छोटे भाई ने घरेलू चपतलिश से तंग आकर कत्ल कर दिया था। महल्लेदारों को पूछा, उन्होंने कहा जी बच्चा इतने खेलता पाया सी तो चाची उन्हें बिठा के लै गया। उन्होंने मैं फोन करके पूछा अपने भाई ने ते उन्हें कहा जी मैं मेरे नाल बच्चा नहीं आया। फिर गली के बच्चे ने जेड़े ने देखा सी उसने पूछा, उसने बुलाया, उन्हें कहा जी मैं अगे बैठा हुआ बच्चा देखा ये लैके जा रहा सी। फिर सानू उन्हें ते बहुत शक होया, इस वजह तो उन्होंने असीं पुलिस में शक की बिना ते फड़ा दिता। सुबह सानू पुलिस ने दस्या उन्हें पूछताछ की तो वो जी मान गए। ये है वो गली, वो महल्ला जहाँ 3 साल एहसन रहता था। शब्बीर ने इस सफाकाना वाक़े की शदीद मजम्मत की है और बच्चे के कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीरात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।